Good evening, everyone. A warm welcome to all of you. Welcome back to the weekly webinar and training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of the Rajlakshmi team, I would like to extend a heartfelt welcome to all the attendees. Thank you so much for joining today's session. I am Nupur Belose, representing Rajlakshmi Solutions, and today we are going to discuss TDS in Tally Prime. Before we dive into today's topic, let's have a brief introduction to Rajlakshmi Solutions. We specialize in software sales, services, solutions, implementations, and development. Our key offerings include Tally Prime, SAP B1, Beatrix, and Great HR. Now, our speakers are ready. Sonali will conduct the presentation and Tarun will provide a live demonstration. It's over to you, Sonali. Hello, good evening everyone. Myself Sonali, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Our today's topic is TDS. TDS, tax deducted at source. TDS is a tax collection mechanism where a percentage of tax is deducted at the source of income and remitted to the government, applicable to salaries, interest, rent, commissions, etc. The payer deducting the tax is the deductor and the recipient of the payment is the deductee. Second point, TDS must be deducted at prescribed rates before making payments linked to the PAN of both parties regardless of the payment method. Deductor must deposit TDS with the government, avoiding in tax compliances and preventing tax evasions. TDS एक ऐसा टैक्सेशन है जो इनकम सोर्स के अगेंस्ट परसेंटेज वाइज डिडक्ट करना पड़ता है, जैसे कि सैलरीज, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, इसके ऊपर भी अपने को टैक्स एप्लीकेबल करना जरूरी है, जो कि हमें गवर्नमेंट को दिया जाता है. जो भी टैक्स डिडक्ट करता है पेयर, वो डिडक्टर एंड रिसिपेंट होता है. अपना पेमेंट डिडक्ट करने से पहले जो भी रेट रहता है, वो रेट के हिसाब से हमें टैक्स डिडक्ट करना जरूरी है. उसके लिए दोनों भी पार्टीज जो है उनको पैन जो है पैन लिंक होना जरूरी है. जो भी अपना ये होता है TDS डिडक्ट होता है, वो हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है. उसके लिए हमें जो भी कंप्लायंसेस और प्रिवेंटेज आते हैं, वो वहां से हम अवॉइड कर सकते हैं. Second slide is TDS. There are generally TDS in books of accounts, TDS payable and second TDS receivable. TDS deduction is applicable to multiple types of payment, including salaries, interest, payments by banks, rent payments, consultation fees, professional fees. Next slide. TDS individually are not required to deduct TDS when they make rent payments or pay professional like lawyer and doctors. जो भी अपना रेंट होता है या लॉयर या प्रोफेशनल फीस होता है डॉक्टर्स का, उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होता. TDS is one kind of advance tax. Tax is to be deposited with the government periodically and the deductor is responsible for depositing on time. TDS एक ऐसा एडवांस टैक्स है, जो भी TDS अपना टैक्स डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट को, टाइम टू टाइम डिपॉजिट करना जरूरी है. और जो भी टाइम टू टाइम डिपॉजिट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये डिडक्टर ही होता है. For the deductee, the deducted TDS can be claimed in the form of a tax refund after they file their ITR. डिडक्टी जब भी TDS जो डिडक्ट होता है, TDS क्लेम करता है, तो TDS क्लेम करने के बाद जो भी है अपना ITR फाइल करना जरूरी होता है डिडक्टी को. तो इस तरीके से जो है अपना TDS ये डिपेंड ऑन रहता है कि TDS को अपना ये एप्लीकेबल है कि किस तरीके से अपन
उसको ये कर डिफाइन कर सकते हैं। तो आगे अभी अपने को प्रैक्टिकली बताएंगे तरुण सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। Yes. So good evening everyone. My name is Tarun and आज का जो टॉपिक है TDS। तो टैली के अंदर हम TDS से रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और किस टाइप से एंट्रीज को प्रिपेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर होंगी, तो वो सारा प्रोसेस हम आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको F11 का फीचर दिखा देता हूँ। F11 जैसे आप करेंगे तो F11 के अंदर आपको TDS वाला ऑप्शन मिलेगा टैक्सेशन के अंदर, जिसको आपको इनेबल करना होता है। इनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये वाला ऑप्शन आप देख रहे होंगे। इस ऑप्शन को जैसे आप यस करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर डिटेल्स मेंशन करनी है अपने, जैसे 10 नंबर होता है, ठीक है। तो ये नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है जो कि डिडक्टर को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। देन यहाँ पर डिडक्टर टाइप आ जाएगा आपका, फिर ब्रांच आप मेंशन कर सकते हैं। देन इसके बाद बाकी की डिटेल्स, अगर कुछ एग्जेम्पशन वगैरह अगर आपको मेंशन करना है तो वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा कंपनी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। फिर इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। एंड एंट्रीज जो रहेंगी अपनी वो कैसे करना है और उसके बाद रिपोर्टिंग कैसे रहेगा इसका, मैं 1 बाय 1 वो बता देता हूँ। तो TDS रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको देखने मिलेंगी, जैसे चालान रिकन्सिलेशन है। जब TDS का पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस हम इसमें करते हैं, चालान रिकन्सिलेशन में, ठीक है। तो ये तो, और सेकंड चीज़ आपका ये है फॉर्म 26Q, जो कि बेसिकली TDS का क्वार्टरली फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हम क्वार्टरली फाइल करते हैं। देन फॉर्म 27Q भी आता है। फॉर्म 27Q जो है वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए होता है बेसिकली, ठीक है। और जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए फॉर्म 26Q रहेगा। नॉन रेजिडेंट्स मतलब कि आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जैसे फॉर्म 26Q में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पीरियड जो अपना आ रहा है, ये आ रहा है सेकेंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर तो अपना अप्रैल से रहता है, अप्रैल मई जून। सेकेंड क्वार्टर अपना होता है जुलाई से, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेकर ऑटोमेटिकली वो पीरियड दिखा रहा है जो अभी करंटली चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ एंट्रीज अपनी आ रही है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप डिडक्शन वाला देखेंगे सेक्शन, तो डिडक्शन डिटेल के अंदर यहाँ पर 6 टाइप्स के हेडिंग दी हुई हैं। डिडक्शन एट नॉर्मल रेट है, हायर रेट है, फिर लोअर रेट भी है, लोअर रेट पे अगर डिडक्शन होता है तो। देन जीरो रेटेड भी है। तो ये टाइप्स है, ये TDS जो है वो किस किस केस में डिडक्ट होगा और किस किस एंट्री यहाँ पे इफेक्ट होगी आपकी। तो ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करेंगे और एंट्री कैसे पास होगी वो देखते हैं। तो जैसे देखिए डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे अपनी 2 एंट्रीज है यहाँ पर। तो मैंने एंटर किया तो पार्टी वाइज यहाँ पर आ जाता है। मैं एंट्री ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये एंट्री है अपनी। अब परचेज की एंट्री है। परचेज की एंट्री के अंदर हम TDS और ये आप देख रहे होंगे मटेरियल के नाम से एक आइटम भी डाला हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि TDS आपका रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट और अदर जितने भी सोर्सेज होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो उस पर ही लगे, इन्वेंट्री के साथ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पार्टी का जो लेजर रहेगा वो देखते हैं किस टाइप का है। जैसे पार्टी के लेजर को मैं ऑल्टर करता हूँ। यहाँ पर ग्रुपिंग इसका सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर है। और स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर TDS अपना एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेबल रखना है अगर आप TDS चार्ज करेंगे उनका। तो फिर यहाँ पर डिडक्टिव टाइप पूछेगा, तो डिडक्टिव टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये लिस्ट यहाँ पर ओपन होगी राइट हैंड साइड में, तो उसमें से आप डिडक्टिव टाइप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल डाला हुआ है। ये करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर। अगर सेम एंट्री के अंदर जैसे परचेज की एंट्री है, अब उस परचेज की एंट्री में अगर हमें TDS डिडक्ट करना है तो हम इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, ठीक है। तो साथ के साथ सेम एंट्री में ही TDS डिडक्ट हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है। ये ऑप्शनल भी है एक तरह से। आप अगर इसको नो रखेंगे तो नो भी रख सकते हैं, बाद में आप JB के थ्रू भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो दोनों एस्पेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे यूज एडवांस एंट्रीज हैं। जैसे हमने इस पर एंटर किया तो यहाँ पर ही पूछ रहा है लिस्ट ऑफ नेचर। यहाँ पर हम ऑल आइटम रख लेते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज। तो अगर आपको, जैसे मैंने इसको यस किया, तो यहाँ पर ये एडवांस एक्टिविटीज कुछ दिखाएगा, जैसे सर चार्जेस। ठीक है, तो सर चार्जेस यहाँ पर है इग्नोर सर चार्जेस एग्जम्पशन लिमिट। अगर कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, सर चार्जेस जिसको बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आपने कुछ एग्जम्पशन लिमिट डाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और इग्नोर करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स में अगर आपने कोई एग्जम्पशन डाली है तो उसको अगर आपको इग्नोर कराना है तो ये वो ऑप्शन है, आप उसको भी कर सकते हैं यूज। देन लास्ट वाला ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीरो लोअर डिडक्शन। तो जीरो या लोअर डिडक्शन, ये दोनों चीज़ें भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट एंट्री में बताऊंगा आपको कि उसकी एंट्री कैसे बनेगी, कैसे उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको नोट कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इसका, जैसे नॉर्मली आप पार्टी का लेजर बनाते हैं, एड्रेस, स्टेट, कंट्री, सारी डिटेल्स फिल करनी है आपको, कुछ भी नहीं वो करना है। और पैन नंबर आप खास तौर पे ध्यान रखिए, पैन नंबर तो मेंशन ज़रूर करना है। क्यों? क्योंकि टीडीएस अगर आप डिडक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, पैन इज मैंडेटरी फॉर ई टीडीएस। ठीक है, तो अगर आप टीडीएस टैली से बनाना चाहते हैं, इसकी रिटर्न वगैरह अगर आप फाइल करेंगे आगे, तो उसके लिए पार्टी के लेजर में पैन नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद जीएसटी नंबर वगैरह सब डाल देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन नेक्स्ट आपका रहेगा जो परचेज का लेजर है। तो परचेज के लेजर को अगर मैं ऑल्टर करूं तो यहाँ पर भी अपने को ये लास्ट में ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसे यस कर लेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर इसको एप्लीकेबल कर लिया है क्योंकि हमें डिडक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेचर ऑफ पेमेंट का। नेचर ऑफ पेमेंट हम यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉमन लेजर ही यूज करेंगे हर एंट्री में। ठीक है, अगर आप स्पेसिफिकली करते हैं, जैसे आपने परचेज का लेजर अलग बना लिया रेंट के लिए, अगर आप रेंट पे लगाएंगे टीडीएस, या अदर किसी सर्विसेज पे लगाएंगे, या प्लांट एंड मशीन पे लगाएंगे, या फर्नीचर पे लगाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सेपरेट अगर आपको मेंटेन करना तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेटेड रहेगा आपका थोड़ा। तो आप अगर इसको कॉमन रख के करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एंट्री के टाइम पे ऑप्शन देगा आपको सेलेक्ट करने का। परचेज के लेजर पे देखिए एंटर किया तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देता है सेलेक्ट करने के लिए टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ पेमेंट, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो लिस्ट में काफ़ी सारे आ रहे हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें से मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसे रेंट ऑन प्लान। ठीक है, तो इस पर मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये इस टाइप का हमने एक नेचर बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेचर बनाना काफ़ी ज़रूरी है, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। तो ये बताता है कि आप किस किस टाइप के नेचर से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेचर इम्पॉर्टेंट है बनाना। नाम इसमें डाल दिया है सेक्शन, और सेक्शन के बाद यहाँ पर पेमेंट कोड आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर रेट आपको डाल देना है जितना परसेंटेज होगा, 10% है 10% डाल दिया है, इंडिविजुअल और अदर डायरेक्टली दोनों। ठीक है, विदाउट पेन में 20 कर दिया है, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आप न्यू क्रिएट करने जाएंगे तो इसमें एक चीज़ और आपको मिलती है जो कि टैली ने दिया हुआ है, हेल्पर। जैसे आप नया टीडीएस नेचर बनाने जाएंगे तो यहाँ पर हेल्पर की हेल्प ले सकते हैं। ऑल टच करेंगे तो इस हिसाब से आपको स्क्रीन ओपन करके देगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि नाम भी आपको मिल जाएगा, और जैसे इंश्योरेंस कमीशन है या तो प्रोफेशन फीस है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, तो इस टाइप से जैसे हम एंटर करेंगे ना तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको डाल के दे देगा, वो सेक्शन भी दे देगा, नाम भी दे देगा, और पेमेंट कोड। तो ये आपको डालना नहीं पड़ेगा, ना ही आपको याद रखना पड़ेगा कि किस चीज़ पे क्या सेक्शन और क्या पेमेंट कोड लग रहा है। तो ये एक बेनिफिशियल है, जस्ट आपको उसका जो रेट होगा वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है और सेव कर देना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट ये अपना जो भी आइटम आ गया वो आ गया। आइटम डालने के बाद क्वांटिटी, रेट, ये सब डाल दिया हमने आइटम एलोकेशन में। देन यहाँ से इस वाली स्क्रीन को हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं एज पर मास्टर करके। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अपना जीएसटी आ गया। जीएसटी आने के बाद टीडीएस।
तो टीडीएस का भी मैं लेजर दिखा दूं आपको कैसा रहेगा। टीडीएस का लेजर हमने नॉर्मली इसमें बनाया है, अंडर रखा है ग्रुपिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आप रखेंगे टीडीएस। देन नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट में हमने एनी रखा है, क्यों? क्योंकि हम ये कॉमनली ही यूज करने वाले हैं सभी नेचर पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर अपना टीडीएस डिडक्ट होके आ रहा है, जो कि आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक है। अगर मैं इसमें स्पेस एंटर कर दूं तो भी वो अमाउंट हट रही है, आ रही है। दैट मीन्स कि वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। इसके बाद अब इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, जैसे रिलेटेड रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आप टीडीएस एनालिसिस देखते हैं, टीडीएस एनालिसिस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑल्ट F1 कर लेते हैं, इस हिसाब से आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर नेचर आ जाता है, देन यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है, परचेज के सामने करके, और इनकम टैक्स करके ऐसा लिखा आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू जितना होगा उतना आएगा। टैक्स रेट यहाँ पर 10% दिखा रहा है, ड्यूटी टैक्स वैल्यू इतना आ गया, तो टैक्स अपना 10,000 का दिखा रहा है। इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो एंट्री जो हुई अपनी, अब देखिए जैसे इसको हमने सेव किया, बिल वाइज डिटेल्स के लिए पूछ रहा है वो लास्ट में, तो आप उसमें डाल भी सकते हैं। और टीडीएस अलग से है अपना, तो टीडीएस हम वहाँ दिखा देंगे 10,000 का, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब सेकेंड एंट्री जो है ये भी इसी टाइप की है। तो इसके अंदर देखिए क्या है, यहाँ पर टीडीएस ऑन, इसका जो नेचर है वो नेचर अलग है, टीडीएस ऑन एनी अदर गुड्स है, ठीक है। तो इसमें भी डिफर कुछ नहीं है। एंट्री इसमें इन्वेंट्री नहीं रखा है कि जैसे आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया, या कोई लैंड एंड बिल्डिंग लिया, या कुछ फर्नीचर है आपका जो आप ऑफिशियल यूज़ के लिए करने वाले हैं यूज़, तो उन चीज़ों पे भी टीडीएस लगता है अपना। तो उसकी एंट्री आपको जो करना है वो परचेज में करना है और अकाउंटिंग मोड में करना है, ठीक है। यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया, पार्टी का लेजर एग्जैक्ट सेम है, पार्टी डिटेल्स वैसे ही बनानी है आपको। डिडक्टिव टाइप डिपेंड करता है आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लेजर अपना सेम है, परचेज का अमाउंट उसकी डाल दी हमने, और यहाँ पर नेचर हमने ले लिया है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ अपना टीडीएस आ गया, टीडीएस आने के बाद यहाँ पर उसकी अमाउंट आ गई, वो भी नेगेटिव में करके, ठीक है। तो ये एंट्री अगर आप करते हैं तो ये एंट्री आपकी जाएगी किसके अंदर, डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे, ठीक। फिर अब यहाँ आते हैं, जैसे कि ये थर्ड वाला देखते हैं, लोअर रेट पे मैंने यहाँ पर डाला है। लोअर रेट पे एंट्री कब आएगी इस हेडिंग के अंदर, वो देखते हैं। जैसे इसका भी नेचर जो आप देख रहे हैं वो टीडीएस ऑन एनी अदर गुड्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे एंट्री को ओपन किया, ये पार्टी है अपनी, पार्टी डिडक्टिव टाइप देखिए इसमें इंडिविजुअल एंड एचयूएफ है, रेजिडेंशियल, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर पार्टी डिटेल्स, ठीक है, परचेज का लेजर हमने डाल दिया। देन यहाँ पर हमने लिया टीडीएस ऑन एनी अदर गुड्स। अब यहाँ पे ये बेसिकली जीएसटी के लिए था, तो जीएसटी के लिए यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि परचेज के लेजर में स्पेसिफाई नहीं किया था, ठीक है। अब इसका वो देख लेते हैं, ऑल्ट ए करते हैं टैक्स एनालिसिस के लिए, देन F5 आप प्रेस कर सकते हैं टीडीएस के लिए। तो टीडीएस एनालिसिस F5 किया तो ये आ गया, ठीक है। ऑल्ट F1 कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये इस टाइप से देखिए 5% करके ये पिक कर रहा है। और अगर मैं इसका नेचर आपको दिखाऊं, नेचर के अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, नेचर के अकॉर्डिंग आना चाहिए 0.1%, ठीक है, जबकि ये पिक कर रहा है 5%। 5% रेजिडेंशियल में क्या है, एक तरह से हायर रेट है, जो कि किसके सामने लिखा है, विदाउट पैन के सामने। दैट मीन्स कि हमने पैन नंबर मेंशन नहीं की है, ठीक है। तो पैन नंबर ये जो डाला है ये एंट्री में बाद में डाला है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो एंट्री है अपनी ये है 6 जुलाई की। तो ऐसा भी होता है अगर आपने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद में अगर आपने पैन नंबर डाला तो वो चीज़ हायर रेट पे वो कंसिडर करेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस एंट्री को या तो कैंसिल करके और बाद में आप वापस से पास कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना दिखा रहा है,
एसेसिबल वैल्यू जो अपना है वो इसमें ये आ जाता है कि जैसे टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं ना जिसको, तो ये वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है अपनी। फिर यहाँ पर आ जाएगा टैक्स डिडक्टेबल कि कितना डिडक्टेबल है, तो यहाँ पर वो फिगर आ रही है आपकी, और डिडक्टेड करंट पीरियड में कितना डिडक्ट हुआ है, ये वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा टोटल आने के बाद यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस डिडक्टेबल। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये वही है जो मैंने बताया था कि पैन नंबर हमने डाला हुआ है लेकिन फिर भी उसने हाइयर रेट पे लिया, तो वो पैन नंबर हमने एंट्री पास करने के बाद में फिल किया, इसीलिए ये सेटल आउट हो जाती है यहाँ। तो टोटल जो अपना आ रहा है डिडक्टेड करंट पीरियड में कितना है 37,500। लास्ट वाली एंट्री भी देखते हैं, ये है अंडर एग्जम्पशन लिमिट में। ठीक है, तो इसके अंदर एंट्री कब आएगी, तो जैसे एंट्री को ओपन किया पार्टी सेम ही है, और इसमें अगर आप देखें तो नेचर का फर्क है बेसिकली। जैसे एंट्री पे एंटर किया, यहाँ पर देखिए ये जो लिया हुआ हमने टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, तो ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दो टाइप के भी नेचर होते हैं, अगर आप 194Q के थ्रू चल रहे हैं तो, जो कि ये रहेगा आपका रेंट पे, कमीशन पे। तो इन चीज़ों पे क्या होता है कि बिलो लिमिट और अबोव लिमिट के हम दो बनाते हैं। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी हम मेंटेन करते हैं, तो उसके केस में होता है ये, अगर थ्रेशोल्ड लिमिट मेंटेन नहीं कर रहे आप किसी भी पार्टी का, तो उस केस में आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मली ही यूज़ करेंगे जो डायरेक्ट होगा आपका, जैसे टीडीएस ऑन रेंट, जो भी आपने नेचर बनाया हुआ होगा वो आप डायरेक्ट ले लेंगे। और अगर थ्रेशोल्ड लिमिट मेंटेन करते हैं तो इसके लिए इस टाइप से दो बनेंगे, एक बिलो का बनता है, तो बिलो वाले में क्या होगा फर्क, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन्ड होगा। ठीक है, और अबोव वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये अबोव वाला है। अबोव वाला जो रहेगा इसमें क्या रहता है, इसमें सिर्फ आप परसेंटेज डालेंगे और सेक्शन कोड वगैरह रहेगा आपका, पेमेंट कोड, और थ्रेशोल्ड लिमिट इसके अंदर नहीं मेंशन करते। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये डिपेंड करेगा आपका, जैसे लिमिट हमने कितना डाला है, थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख का डाला है, तो 50 लाख वो इनवॉइस फिगर नहीं है, 50 लाख वो है टर्नओवर। ठीक है, तो पार्टी की टर्नओवर अगर आप देखें लेफ्ट साइड में, तो अभी कितना दिखा रहा है यहाँ पे, ये दिखा रहा है 2 लाख। ठीक है, दिस ईयर में, तो अगर वो 50 लाख से अबव होगा तो ही वो टीडीएस डिडक्ट करेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बिलो लिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है, तो बिलो अगर हम लेते हैं तो उसमें टीडीएस चार्ज नहीं होगा। देखिए ऑल्ट ए किया टैक्स एनालिसिस करने के लिए, यहाँ पर किया हमने टीडीएस एनालिसिस, और यहाँ करते हैं ऑल्ट एफ, तो ये दिखा रहा है बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट अपना ये आ गया, परचेज का अमाउंट आ गया यहाँ पे 10,000, जितना अमाउंट था टैक्सेबल वाला, और रेट जो है वो 0% पिक कर रहा है, तो वो इसीलिए 0% पिक कर रहा है, क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, जब क्रॉस होगा तब टीडीएस डिडक्टेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अगर अंडर लिमिट रहेगा थ्रेशोल्ड लिमिट, तो वो एंट्री आपकी कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, लोअर एग्जेम्पशन, अंडर एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर, तो इसके अंदर वो एंट्री आएगी आपकी। इसीलिए इसमें देखेंगे तो डिडक्टेबल वाले में डिडक्टेड करंट पीरियड में नहीं आई है कोई भी, ना ही डिडक्टेबल में आया है, तो ये चीज़ है। तो इस चार जो अपनी एंट्रीज आ रही हैं उसमें यहाँ पर 37 टोटल जो डिडक्टेड आ रहा है वो कितना आ रहा है 37,500। अब इसकी जो पेमेंट की एंट्री होगी वो कैसे करनी है, जो अपनी यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगी इसके नीचे वाले कॉलम में, जहाँ लिखे ना पेमेंट डिटेल्स और इंक्लूड इन रिटर्न्स, देन यहाँ पर आता है अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस, तो वो करते हैं। अब जो सेकंड क्वार्टर है अपना, तो सेकंड क्वार्टर के अंदर जो पेमेंट रहेगी वो पेमेंट आप उसी पीरियड की ड्यूरेशन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं डेट डाल देता हूँ, और 31 डाला समझो मैंने, 31/7 और 24। ठीक है, और एंट्री जो होगी वो जर्नल में होगी, हाँ पेमेंट में होगी, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट में गए F5 किया हमने। देन यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ऑटोफिल का एक ऑप्शन है, इसको आपको यूज़ कर लेना है। ऑटोफिल किया, यहाँ पर स्टैट पेमेंट, देन यहाँ रहेगा टीडीएस, टीडीएस के बाद यहाँ पर पीरियड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई वो पीरियड ले रहा है ऑटोमेटिक। देन
यहाँ पर आता है डिडक्टेड टिल डेट। तो ये पूछ रहा है कि डिडक्ट कब तक की डेट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 30 पर डाल सकते हैं, 31 भी कर सकते हैं। तो तब तक का वो पेमेंट जितना भी बनेगा टैक्स का वो ले लेगा उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने ऑल आइटम कर दिया, सेक्शन वो पूछ रहा था। देन यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ भी ऑल ले लेंगे। 2 टाइप की नेचर लिस्ट में दिखा भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिडक्टेड स्टेटस, तो इसको ऑल कर देते हैं। रेजिडेंस हो या नॉन रेजिडेंस हो आप दोनों ले सकते हैं। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको मैंने ऑल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैश और बैंक पूछ रहा है, तो हम यहाँ बैंक ले लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लिया समझो हमने, ठीक है। तो यहाँ अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा और इसकी फिगर भी यहाँ पर दिखाई जाएगी आपको कि टीडीएस कितना कितना है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये चेक डिटेल्स पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है। जैसे चेक रेंज वगैरह अगर आप मेंटेन रखा है आपने, या मैं रैंडमली डाल रहा हूँ, आपको करेक्ट डिटेल्स लेकिन मेंशन करनी है, ठीक है। देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब ये एंट्री कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी ये आपको देखना है। इसमें टीडीएस रिपोर्ट में जाके 26Q देखिए, ये एंट्री अभी जो आ रही है अपनी वो जाएगी अनसर्टेन में। अनसर्टेन में क्यों जाएगी, इसका भी रीज़न है, अभी वो इंक्लूड नहीं हुई है, ठीक है। क्यों इंक्लूड नहीं हुई है, क्योंकि उसके अंदर देखिए यहाँ लिखा है बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स जब होती है ना, जैसे आपने पेमेंट किया तो उसकी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है। ये चीज़ आप रिकनसाइल वाली जो रिपोर्ट है उस पर जाके भी देखेंगे तो वहाँ भी मिलेगा आपको। ये देखिए सेम चीज़ आपको कहाँ मिलता है, जब आपने बैंक में पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद बैंक क्या करता है, एक आपको चालान बना के देता है। तो वो चालान उसके अंदर डिटेल्स होती है, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ आकर के अपडेट करनी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिकनसाइल। तो रिकनसाइल करने के लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स मेंशन करनी होती है। जो चेक नंबर होगा आपका वो आपको यहाँ डाल देना है, ठीक है। उसका डेट आपको यहाँ डाल देना है। देन यहाँ पर BSR कोड, एक BSR कोड होता है जो कि जिसमें 7 डिजिट्स होते हैं। देखिए स्टार्टिंग के जो डिजिट होते हैं, जैसे 3 डिजिट जो होते हैं ना, तो ये बैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बैंक जैसे अलग अलग बैंक्स होते हैं, उसका BSR कोड भी सबका अलग अलग होता है। जैसे हमने स्टेट बैंक लिया तो स्टेट बैंक का ऐसा ये 4 तरीके के हो सकते हैं। 000 हो सकता है, 002 हो सकता है, 006 हो सकता है। तो ये स्टार्टिंग के 3 डिजिट है और उसके आगे के 4 डिजिट जो होते हैं वो स्पेसिफिकली ब्रांच को डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे 777 और इस टाइप से रैंडमली डाल देते हैं नंबर, ठीक है। फिर और यहाँ पर चालान नंबर होगा आपका, चालान नंबर होता है आपका, तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। तो BSR एक चालान कोड बनता है, चालान नंबर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद चालान का डेट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ सेम ही डाल दे रहा हूँ इस टाइप से। अब यहाँ पर अपना बैंक पूछ रहा, तो बैंक ले लेंगे यहाँ पे, और इसको ब्रांच नेम भी आप डाल देंगे जो भी रहेगा आपका। जैसे मैं वेस्ट थाने लिख देता हूँ सब उसके लिए। फिर इसको मैं करता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है। वो एक एंट्री हट गई है देखिए यहाँ से। और अब अगर मैं इसको शो ऑल पे करूँ तो शो ऑल में वो एक एंट्री दिखाएगा, तो वो एक रिकनसाइल्ड हो गई है। अब जो रिकनसाइल्ड हुई है ना एंट्री, वो एंट्री आपको यहाँ मिलेगी इसके अंदर। एक एंट्री तो अभी यहाँ पर आ रही है, इसकी डिटेल्स भी अपडेट कर देते हैं। जब आप इसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी करेक्ट वाली। देखिए वो एंट्री आपकी आ जाएगी इसके अंदर। ये इंक्लूड इन रिटर्न इस टाइप से आएगा, नंबर 1, ठीक है। पीरियड यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड क्वार्टर का पीरियड है तो वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पर टोटल कितना अमाउंट पेड किया है हमने,
टैक्स का, तो वो आ जाएगा। जैसे रेंट के लिए हमने पे किया, कितना गया है 10,000 उसमें गया है, और TDS ऑन एनी अदर गुड्स में कितना गया है। तो ये नेचर है दोनों, तो ऐसे ही नेचर आपके मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल आ जाएंगे, उसकी अमाउंट्स आ जाएंगी। टोटल अमाउंट आपने कितना पे किया है 37,500, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका बनेगा रिपोर्ट, और इसको जब आप एक्सपोर्ट करेंगे फाइलिंग के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें जाना है आपको एक्सपोर्ट में, और ई रिटर्न में जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो फाइल बनेगी आपकी TXT फाइल, तो वो फाइल फिर आपको वैलिडेट करनी होती है, और NSDL की साइट से फिर वहाँ से जा करके फिर आप उसको वैलिडेट करते हैं और फाइलिंग वगैरह होता है। तो वो नेक्स्ट प्रोसीजर आपका, ठीक है। सेम यही चीज़ आप फॉर्म 27Q के अंदर भी देखेंगे अगर आपकी कोई आउटसाइड पार्टी होगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much, Sonali and Tarun, for the knowledge sharing session. Now it's time for an overview of today's session. It's over to you, Afan sir. Good evening, everyone. Sonali and Tarun, thank you so much for the informative session. It was really a good and deep diving knowledge session for each and everyone present in the webinar. I would like to request that if you have missed any question or any kind of process, the session will be uploaded on YouTube. You can go through that, and if you have any questions, you can get in touch directly with us for further clarification. That's all for today. It's over to you, Nupur. Thank you